یہ دیکھیں کام اس کا دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے جو شیشے کا کام یہاں پر کیا گیا ہے۔ ایسا کام دنیا میں میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا، میڈیا کی دنیا پر کہیں پہ بھی۔ جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ہر جو ہے صحن دوسرے صحن سے خوبصورت ہے۔ صحن کی خوبصورتی ہے کہ یہاں سے امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک بہت آئیں آپ کو جس ویڈیو میں جس چیز کا انتظار تھا کہ مولا رضا کی زری کب دکھائیں گے شاکر بھائی، آئیں آپ کو امام علی ابن موسیٰ الرضا کے زری مبارک سلطان العرب والعجم۔ ممنون، کیا بات ہے، مزیدار چائے جو ہے نا بڑے چاروں دروازوں کے پاس۔ اچھا چاروں دروازوں پر یہ چائے موجود ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ شاکر النشبی۔ اس وقت یہ صحن دیکھ رہے ہیں امام علی ابن موسیٰ الرضا کا، یہ روضہ مبارک ہے۔ ان کی ایک ایک صحن بین الحرمین کربلا سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ مولا نے یہ توفیق دی ہے، میں ان دنوں میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کے روضے پر آیا ہوں، اور مختلف صحنوں کے مختلف نام ہے، اور ہر صحن دوسرے صحن سے خوبصورت ہے۔ یہاں پر ہزاروں زائرین ایٹ ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مختلف اعمال ہوتے ہیں، دعائے کمیل پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح دعائے توسل اور بہت سارے۔ یہاں پہ ہر بندہ زیارت کے لیے آ سکتا ہے۔ بہت ساری ٹھنڈے پانی کی یہاں پہ سبیلیں لگائی گئی ہیں، اندر جائیں تو پھر سونے سبیل ہے، باب شفا آتا ہے، امام رضا کی زری مبارک، رہبر معظم کی قبر، ان پہ فاتحہ کے لیے لوگ، شیخ بہائی بہت بڑی شخصیت، اس کے علاوہ دسترخوان، یہ ساری چیزیں مختصر انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مشہد کے دوست ہیں ذوالفقار اسدی بھائی، کیسے بھائی جان؟ ٹھیک ہے۔ ذوالفقار اسدی بھائی یہ بتائیں کہ یہاں پہ صحن جو ہیں اتنے بڑے بڑے، ان کے مختلف نام ہیں، کچھ نام ہمیں آپ بھی بتائیں کہ کون کون سے صحن ہیں؟ حرم امام رضا علیہ السلام میں 8 9 10 بڑے صحن ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے جو بڑا صحن ہے وہ جس صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، صحن پیغمبر اعظم، اچھا، فارسی میں پیغمبر اعظم کہا جاتا اچھا، ہے، اور اس کے علاوہ صحن کوثر ہے، صحن ہدایت ہے، صحن آزادی ہے، صحن امام حسن مجتبیٰ ہے، اور صحن جہاں پہ سونی سبھی لگی ہوئی ہے، یہاں صحن شفا بھی، جسے ہم پاکستانی اور ہندوستانی جو ہے صحن شفا بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو صحن انقلاب بولتے ہیں۔ صحن انقلاب ہے، اس کے برابر میں پھر اس طرف آ جائیں تو صحن غدیر ہے، صحن غدیر کے برابر میں صحن جمہوری اسلامی ہے، صحن جمہوری اسلامی کے بعد جو ہے صحن قدس بھی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، یہاں پہ قدس کا جو ہے ایک نماد بنا ہوا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہاں پہ جو اکثر لوگ آتے ہیں، زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں، اسی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہاں پر دسترخوان امام رضا علیہ السلام، ہر لوگ جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کی تمنا ہوتی ہے کہ امام رضا پہ دسترخوان حاصل کریں۔ ایک تو آن لائن ہوتا ہے، اپنا پاسپورٹ دو، اپنا رجسٹریشن کراؤ۔ دوسرا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نذورات، یہاں پہ جو پیسے دیتے ہیں، تبرکات، حرم کو آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا صفائی یا کسی کام کے لیے بھی نیت کر کے، تو جب وہ آپ ان کو پیسے دینا چاہتے ہیں یا عادیہ کچھ بھی، تو اس میں اگر آپ کے پاس 1 ملین ہے ایرانی، تو یہ پاکستانی تقریباً 2000 بن جاتے ہیں، تو اس میں ایک ٹکٹ آپ کو مل جائے گی۔ 1.5 ملین پہ 2 آدمیوں کی آپ کو ٹکٹ ملے گی، تو وہ پیسے نذورات میں جائیں گے، وہ آپ کو پرچی دیں گے۔ صحن غدیر میں جا کے جہاں دسترخوان ہے ان کے سامنے ایک جو ہے حجرہ ہے، ایک روم ہے، وہاں پہ جا کے جمع کریں گے، آپ کو 2 ٹکٹیں ملیں گی، 1.5 ملین جو پاکستانی 3000 بنتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، باب شفا مسجد گور، ہمارے ساتھ ذوالفقار اسدی صاحب موجود ہیں، یہاں نجف اشرف اپنے مشہد مقدس میں اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں نجف سے، تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو بتاتے چلیں گے۔ میں نے ابھی ذوالفقار بھائی سے کہا کہ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ یہاں پر ایک کوئی ایسا شخص آیا تھا جو گاؤں سے، تو انہوں نے مولا رضا کے بارے میں سنا، تو یہاں پہ خادم سے آ کے اس نے پوچھا کہ مولا رضا جو ہے وہ کہاں ہیں، تو خادم اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا کہ وہ سامنے میناروں کے درمیان ہے۔
तो उसने कहा क्या काम है मौला रज़ा से, उसने कहा मुझे टिकट चाहिए। तो फिर वो जब उन्होंने तो मजाक में कह दिया, मजाक में गया, वो वापस आया तो उसके हाथ में कोई टिकट थी। उसने कहा किससे लिया, उसने कहा मौला रज़ा से। तो वो खादिम उसने इस्तग़फ़ार की, उसने कहा तो मैंने तो मजाक की, इसको पता नहीं कहाँ से टिकट मिली। तो यही वो सहन पैगम्बर आज़म जिसके बारे में भाई ने बताया, ज़ुल्फ़िकार भाई ने, कि सबसे बड़ा सहन ये है। अंदर चलते हैं, मस्जिद शाह गौर और सोने की सबील और रहबर मुअज़्ज़म की कब्र अतहर पे फातिहा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इमाम रज़ा को सलाम करने। एक एक सहन बहुत बड़ा खूबसूरत, एक से एक बड़ा सहन है माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह आपको सुकून आएगा ये वीडियो देखने के बाद। बहुत सारी ऐसी मालूमात मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जो शायद आपको किसी ने बताई हो। माशाल्लाह ये सहन देखें, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के रोज़े अतहर में जितनी भी मुनासबात होती है विलादत और शहादत की, सारे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। दुआए कुमैल जैसे प्रोग्राम, मशहद में जब रहबर मुअज़्ज़म की शहादत की खबर दी गई, आपने वो वीडियो देखी, वो भी यहाँ पे उनकी खबर ऐलान हुआ और हर एक ने गिरिया किया। दुआए कुमैल, दुआए तवस्सुल, 19 21 रमज़ान, हर जो मुनासबत होती है सबसे बड़ा प्रोग्राम यहीं पे होता है। ज़ुल्फ़िकार भाई सहन का नाम क्या है? ये रवाक के इमाम खुमैनी है। अच्छा। पहले ये सहन हुआ करता था, लेकिन अभी तकरीबन 10 से 12 साल हुए हैं कि इसको कवर करके अच्छा, इसको अभी इन्होंने रवाक बना दिया, यानी हाल बना दिया। अच्छा माशाल्लाह। नमाज जुम्मा अच्छा ये पहले खुला हुआ था? पहले खुला है। अरे माशाल्लाह, ये देखिए काम इसका, देखिए आप हैरान हो जाएंगे, जो शीशे का काम यहाँ पर किया गया, ऐसा काम दुनिया में मैंने कभी कहीं नहीं देखा, मीडिया की दुनिया पर कहीं पे भी। ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर दरो दीवार पर हीरा जवरात लगे हुए हों। इनकी झलक देखिए आप। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हर सहन दूसरे सहन से खूबसूरत है और इतनी मेहनत से ये बनाया गया है, इतनी जोश से और इतने अकीदे के साथ। अल्लाह अकबर। आपको अल्लाह सआदत नसीब करे इमाम रज़ा की ज़ियारत पे आने की, तो फिर इस सहन को गौर से बैठ के देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी मेहनत और मुशक्क़त से ये बनाए गए। छत पे शीशे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चलें, यहाँ पे बहुत बड़े आलमी दीन है शेख बिहाई, और उसके बाद रहबर मुअज़्ज़म की जो है कब्र अतहर पर लोग फातिहा पढ़ें। शहीद मुजाहिद, बहुत बड़ी शख्सियत इस ज़माने के, इस दौर की, हमारे लाखों दुरूद सलाम इनकी शहादत पर। हरम के अंदर रवा के इमाम खुमैनी में यहाँ पर वो बॉक्स भी था और ये बॉक्स भी है जहाँ पर ज़ायरीन की मोबाइल चार्ज करके देते हैं और फिर टोकन और नंबर, सारा एड्रेस वगैरह लिखते हैं और कौन सा मोबाइल नाम, और उनको एक कार्ड या पासपोर्ट देंगे तो वो मोबाइल आपको यहाँ पे लगाएं। ये इसी खिदमात हैं हरम के अंदर ये इसी खिदमात हैं जो मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई कल आए तो मोबाइल ना हो तो चार्जिंग तो परेशान ना हो। आगे चलते हैं। माशाल्लाह जी, एक दूसरे सहन के अंदर है, सहन आज़ादी है, और इमाम रज़ा के रोज़े के कब्र के करीब जा रहे हैं। ये है शेख बिहाई, इतनी बड़ी शख्सियत है कि अपने ज़माने का आलिम दीन था, इल्म जाफ़र और बहुत सारे उलूम में इनको जो है बहुत सारे फ़न अल्लाह ने दिए थे और बहुत बड़ी शख्सियत है। और इनकी बताए गए जितने भी अमाल हैं, जिसने भी अंजाम दिए वो पढ़े और इस तरह किया है तो वो हाजत रवाई हुई है। शेख बिहाई बहुत बड़ी शख्सियत है, आप इनको सर्च करेंगे तो इन पे लोग जब बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, इनकी कब्र पे नज़र पड़ के ज़रूर फातिहा पढ़ते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर से सर्च कीजिएगा, शेख बिहाई जो मशहद में जिनकी कब्र है, तो ये जितनी बहुत सारे ऐसे मुजर्रब अमाल इनके बताए गए हैं इल्म जाफ़र के हिसाब से, और बहुत सारे और साइंसदान भी रहा है अपने जो है ज़माने में। और एक वाक़या हुआ था किस तरह हमाम एक मोमबत्ती पे चलाया था, सारे अंग्रेज़ ज़माने के परेशान हो गए थे। चले अंदर चलते रहे। रहबर मुअज़्ज़म की कब्र भी यहाँ पर है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि हर जो है सहन दूसरे सहन से खूबसूरत है। सहन की खूबसूरती है कि यहाँ से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक
बहुत खूबसूरत गुंबद मुबारक ज़ियारत के लिए मिलता है। सामने इमाम रज़ा का गुंबद हो, ज़ियारत पढ़ी जाए, नमाज़ें पढ़ी जाएँ और उसकी तरफ से बातें की जाएँ, कितना सुकून मिलेगा। अल्लाह पाक ये दिन आपको नसीब करे। इमाम रज़ा जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सब पे सलाम करना, उन सबको अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब करना। जिन्होंने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया, जिन जिन मोमिन को पता चला कि शाकिर भाई इन दिनों में मशहद इमाम रज़ा की ज़ियारत पे गए, हालात जंग भी है, मगर जंग और गर्मी और इन चीज़ों का क्या असर हम पर है। हमें तो बस एक बहाना है कि मौला की तरफ बुलावा आए और हम चले जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तड़प होती है, जबकि करबला और नजफ़ में हम रहते हैं, मगर इमाम रज़ा की जो ज़ियारत है वो दिल में तड़प ऐसे होती है कि अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मौला रज़ा का ये रोज़ा मुबारक, अल्लाह पाक आपको इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब करे। सहन आज़ादी के ये सारे मनाज़िर हैं जहाँ पर इस वक्त मोमिनीन मौजूद हैं। मेरी वालदा जब इधर आई थी मुझे कह रही थी, शाकिर यार ये घर नहीं जाते कि हर वक्त नमाज़ें, इबादतें, दुआएं उसमें लगे रहते हैं। मैंने कहा अम्मी, क्योंकि इनकी ज़ुबान एक है तो आपको ये लगता है कि ये वही लोग हैं, मगर ये जाते हैं और फिर दूसरे आते हैं। سلام. سه نفر اینجا بشن بیاد. قبرك من بقاء من خلقك مرفوعا والإذاعة فيما استفاد بك موجودا والإعانة المستعان بك موجودا وإذا رجل من جد وإذا تخلق من جد والخلل من القرآن مقالة सहन आज़ादी से जैसे आएंगे रवा के इमाम खमैनी पे, तो ये सहन कौन सा? सहन गोहर शाह। गोहर शाह। वहाँ से फिर रहबर मुआज़म सैयद शहीद अल मुजाहिद की कब्र, उन पे मोमिनीन फातिहा पढ़ रहे हैं, कुरान ख़वानियाँ हो रही हैं, इनसे ज़ियारत करें। नन्ही कब्र भी है रहबर मुआज़म के पास। عکس برداری کردی حرکت کنی یا الله بفرمایید بفرمایید یا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد شکر الحمدللہ. اللہ پاک درجات بلند کرے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. الہی آمین. آئیں آپ کو جس ویڈیو میں جس چیز کا انتظار تھا کہ مولا رضا کی زری کب دکھائیں گے شاکر بھائی، آئیں آپ کو امام علی ابن موسیٰ رضا کے زری مبارک، سلطان العرب والعجم، عربوں کا اور ہر وہ قوم جو غیر عرب ہے ان کے سلطان، بادشاہوں کے بادشاہ. سامنے امام رضا کا روضہ مبارک. یہ ذریعہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی
मौला मूसा कादिम के शहज़ादे, रसूल अल्लाह के शहज़ादे, बीबी फातिमा ज़हरा के शहज़ादे, मौला हसन हुसैन के शहज़ादे हैं। मौला रज़ा पर हमारे सलाम। दुनिया भर से जितने भी मोमिन देख रहे हैं मेरे मौला, उन सब के सलाम जो अभी तक आपका एहतराम इश्क दिल में रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और आपके रोज़े पर नहीं आ सके मौला, उन सबको अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा, उन सबको अपने घर पे आना नसीब फरमा मौला। या सुल्तान अल अरब वल अजम, या अनीस अन्नुफूस, या गरीब अल गुरबा, अल्लाहु अकबर। या मौला रज़ा, या मौला अल मदद, या मुश्किल कुशा, या मौला रज़ा। अल्लाह ज़रियत हर हज़रत मौला सैयदी या अली इब्न मूसा रज़ा पर हमारे लाखों दुरूद सलाम। सलाम करें, ज़ियारत करें, कोई हाजत है तो वो तलब करें मौला से, ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, मौला रज़ा का ये दूसरा सहन है और यहाँ पर मस्जिद शाह गौहर बहुत बड़ी तारीख़ है। यहाँ पे मिंबर मौजूद है और माशाअल्लाह मौला रज़ा के रोज़े के अंदर एक मस्जिद है पुरानी, इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है और ये बहुत बड़ा पुराना मिंबर यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ हमारे दोस्त जुल्फ़कार असदी मौजूद हैं। भाईजान, ये मस्जिद शाह गौहर की तारीख़ क्या है, इसके बारे में लोग क्या बताते हैं? मुख्तलिफ हम तारीख़ सुनते रहते हैं, आप कुछ बताएं इसके बारे में। जैसा कि देखें कि ये मस्जिद गौहर शाद है और ये मस्जिद 1418 ईस्वी में बनी, यानी तकरीबन आज से 600 साल पहले। अच्छा, पहले यानी 600 साल कदीमी मस्जिद है। और ये मस्जिद नाम से ही यानी गौहर शाद, एक ख़ातून थी गौहर शाद के नाम से, जो तैमूरी ख़ानदान, एक बादशाही ख़ानदान रहा है। अच्छा, उस ख़ानदान की मलका थी और शाहरुख तैमूरी जो उस वक़्त के बादशाह थे, उनकी वो ज़ौजा थी। उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई 1418 में जी, जो तकरीबन कमरी में बनता है 825 हिजरी कमरी। ठीक। और ये तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर पर ये मस्जिद है, जिसमें 4 बड़े ऐवान हैं। अच्छा, एक राइट है, एक लेफ़्ट है और 2 आगे पीछे 4 ऐवान हैं, जहाँ पे माह रमज़ान में जो है वो एक ख़वातीन और जेंट्स, यानी ख़वातीन जुदा और जेंट्स जुदा का भी एहतिकाफ़ होता है यहाँ पे। अच्छा, इत्काफ़। और 2 बड़े मीनार हैं इसके, जो तकरीबन 43 मीटर के मीनार हैं। और इसमें जो काशीकारी का बहुत एक शाहकार काम किया हुआ है। इसका गुंबद सब्ज़ फ़ेरोज़ी गुंबद है, बहुत अच्छा, जो इसके ऊपर बहुत बड़ा, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बिल्कुल जुनूबी हिस्से में ये मस्जिद वाक़ है माशाअल्लाह। और इस मस्जिद में एक बहुत बड़ा मिंबर भी रखा हुआ है। इस मिंबर से क्या? ये मिंबर सफ़वी ख़ानदान ने बनवाया था, क्योंकि तैमूरी ख़ानदान के बाद सफ़वी ख़ानदान जो आया था उसको उन्होंने भी यहाँ पे एक इमाम जमा के लिए वो मिंबर था, खुतबात वगैरह में। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब है। अच्छा, इमाम ज़माना से मंसूब है। एक तैयारी की थी जी जी, कि हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए एक मिंबर बनाएंगे, जब वो ज़ुहूर करके खुरासान आएंगे तो लाज़मी उनके लिए एक मिंबर हो जी जी, ताकि वो खुतबा दे सकें। या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु लाखों दुरूद व सलाम जबना रसूलुल्लाह पर, ये उनके नाम पे बनाया गया मिंबर है मस्जिद शाह गौहर में। और ज़ुल्फ़कार असदी भाई बता रहे हैं यहाँ पे जब रमज़ान होता है तो उसका एहतिकाफ़ बड़े अदब और एहतराम से यहाँ पे एहतिकाफ़ जो है उसमें मोमिन बैठते हैं और इबादत करते हैं। ये मौला रज़ा के बिल्कुल गुंबद के सामने है और जब भी आए मस्जिद शाह गौहर में नमाज ज़रूर पढ़िएगा। माशाअल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत ही है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। चलते हैं सोनी सबील के पास, जहाँ इमाम रज़ा को गुस्ल दिया गया था। माशाअल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला रज़ा की ज़री मुबारक ज़ियारत कराने के बाद मस्जिद शाह गौहर। ज़ुल्फ़कार भाई, चाय पिलाएं यार। आपको
जन्नत की चाय का जायका चखवाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जन्नत वाले इधर आते हैं वो है ना, हाँ हाँ, जहाँ इस चाय का इश्तियाक रखने वाले जन्नत के जो फरिश्ते हैं वो भी इश्तियाक रखते हैं। ऐसी चाय आपको पिलाने जा रहे हैं ऐसे। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में जो भी मेहमान ज़ायर आता है उसको चाय का न्याज पेश किया जाता है। माशाल्लाह, आपने यहाँ पे ड्यूटी दी उस दिन मैंने देखा तस्वीर वगैरह। मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगती रहती है। अच्छा। रिजवान और इमाम हसन मुश्तबा चाय खाने। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब भी मौला रज़ा के रोज़े पे आए चाय ज़रूर पिए। भाई एड्रेस तो बताएं मौला रज़ा की किस सहन में है? ये चाय खाना जो मौजूद है जी। ये 2 सहनों के बिल्कुल दरमियान में है, ये कॉर्नर में। इस तरफ सहन कौसर है और इस तरफ सहन पैगम्बर आज़म है। सहन पैगम्बर आज़म और सहन कौसर के बीच में जो ये सहन छोटा सा नज़र आएगा ये चाय के लिए है। बहुत ही मज़ेदार चाय होती है। इसमें लाइन में लगना होता है? अभी रश नहीं है तो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, हम चले जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। वैसे रश होती है इस चाय पीने के लिए। यही चाय आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मिलेगी। इन्होंने शुरू कर दिया चाय खाना नजफ़ अशरफ इमाम अली के रोज़े अतार पर। इतनी मज़ेदार चाय होती है जब आप यहाँ पर। अच्छा कितने, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ममनून, क्या बात है। मज़ेदार चाय जो है ना, बड़े चारों दरवाज़ों के पास। अच्छा चारों दरवाज़ों पर ये चाय मौजूद है जी, क्या बात है। अच्छा ले भी जा सकते हैं अपने डिश में, जहाँ आपकी फैमिली बैठी हुई है उसके लिए डिश पूरा देते हैं, उसमें आप ले जा सकते हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया जी। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का रोज़ा मुबारक, मैंने जैसे अपनी वीडियो में कहा है कि हर सहन दूसरे सहन से खूबसूरत है। यहाँ पे जो सहन आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सहन जो है इनकलाब कहलाता है और सोने की सबील है, बाब शिफा है, जहाँ मौजूदे होते हैं। कोई ऐसा मरीज़ जिनका इलाज कहीं पे भी ना हो तो वो यहाँ पर आके उनको बांध लेते हैं या वहाँ पे खड़ा कर देते हैं या बिठा देते हैं। तो शफा याब इस दर से खुदावंद आलम आइम्मा के सदक़े में दुआ कबूल मुस्तजाब फरमाता और फिर बीमार जो है हालत बेहतर में हो जाता और शफा याब हो जाता। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के रोज़े पर कोई भी दुआ की जाए खुदावंद आलम कोई दुआ रद्द नहीं करता। इमाम रज़ा की मैंने जैसे बताया कि बादशाही अपनी है। ये नज़ूरात यहाँ पे अगर आप 1.5 मिलियन जमा करेंगे, जो पाकिस्तानी 3000 में थे, 2 बंदे की आपको दस्तरखान इमाम रज़ा आपको मिलेगा। नज़ूरात में जाएँ, टिकट देंगे। सहन गदीर में जहाँ पे दस्तर मेहमान सराय है, पिछले ज़माने में यहाँ पर दस्तरखान होता था, ये शिफ्ट करके उधर उन्होंने किया हुआ है। तो वहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो वो टिकट दिखाएंगे कि आपको 2 बंदों के आप जो है वो टिकट अलग से निकाल के देंगे, फिर जाके मेहमान नवाजी में अंदर जाना है। माशाल्लाह जी, हम अभी जो है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के रोज़े पे जा रहे हैं और ये सहन इनकलाब और ये सोने की सबील, और बताया जाता है कि सोने की सबील यहाँ पे इमाम रज़ा को गुस्ल दिया गया था और ये मुतबर्रिक पानी लोग शिफा के लिए भी लेके जाते हैं। मौके बुक का आज़ादारियों का सिलसिला जारी है। सामने यहाँ से इमाम रज़ा का जो रोज़ा नज़र आता है, सुभान अल्लाह, आपकी दिल बहार बहार सी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रखें, सर पे चादर ले लें मेरी माए बहनें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलाम अलैका या इब्न अल हसन वल हुसैन, अस्सलाम अलैका या इब्न मूसा इब्न जाफ़र, या अली इब्न मूसा रज़ा। आप पर लाखों दुरूद व सलाम। मुहर्रम का नजर आता है, करबला वालों का गम आप तड़पाता है और मातम से गरेबान बता जाता है। आ करते थे तो ये अर्श भी थर्राता था, आ करते थे तो ये अर्श भी थर्राता था, रोता था काबा या इमाम माशाल्लाह। मौला रज़ा के रोज़े पर हजब सी रौनक है। यहाँ पर अज़ादारियों और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ये वो सोने की सबील है
یہ وہ باب شفا ہے جہاں پر مریضوں کو شفا ملتی. کوئی بھی ایسی پریشانی یہاں پہ حاجت لے کے کھڑے ہو جائیں اور مولا رضا سے دعا مانگے. خداوند عالم کے لیے ہاتھ بلند کریں. رب العالمین اس دروازے سے انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائے گا. آپ کو امام رضا خالی نہیں لوٹائے گا. ہر دعا آپ کی مستجاب ہوگی انشاءاللہ. آل رسول ہیں اور ان کے در پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ سامنے باب شفا ہے. یہ سونی سبیل ہے. اس کا پانی جو ہے متبرک ہے. ہر طرف جو ہے رات کے ٹائم میں عزاداریاں جاری ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. امام علی ابن موسیٰ رضا آپ کو بھی یہ دل نصیب کرے کہ آپ بھی امام رضا کے روضے کی زیارت پہ آئیں اور آپ بھی عزاداری امام حسین کر سکیں ان کے حرم میں.